بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم جو اسلام اور ایتھیزم کے بارے میں ایک پروگرام چلا رہے ہیں، آج اس کا ہماری دوسری نشست دوسری ایپیسوڈ ہے۔ ہمارے کچھ سوالات جو ہمارے اور بھائیوں کی طرف سے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جو ہماری یوتھ کے ذہنوں میں اس دور میں جنم لے رہے ہیں، ان کو ہم دور کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نائب امیر تحریک رسالت الرسول جناب حافظ صوبان صاحب۔ ہم ان سے چند سوالات کریں گے۔ حافظ صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور سے طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے جیسے کافی سارے سوالات آئے تھے، آج اسی کے جو متعلق ایک پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نظر نہیں آتا تو اس کا کوئی وجود کی کوئی نشانی بھی ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جس طرح پچھلی جو ایپیسوڈ تھی پوڈ کاسٹ کی، اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات پاک ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کے وجود جو ہے اس پر کائنات کی ہر ذرہ دلالت کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس سب سے جو قریب چیز ہے وہ عقل ہے۔ علم کے یاد رہے 3 اسباب ہوتے ہیں، اس میں ایک عقل، اور عقل میں اب دیکھیے عقل وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے سب عاقلین کو عطا فرمائی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ تب سوچئے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، سائنس بھی مانتی ہے کہ بگ بینگ ہوا، اور یہ بالکل ایک مسلمہ بات ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر ورک کے لیے اس ورک کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، ہر ڈیزائن کے لیے ڈیزائنر ہونا ضروری ہے۔ یہ تو عقل مانتی ہے۔ تو جب یہ بات عقل مانتی ہے، اسے پتہ چلا اس کائنات کو جو ڈیزائن ہے، اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو بالکل عقل سے بالکل ثابت ہے۔ اسی طرح اپنے وجود کو دیکھ لیجئے، چلے مان لیتے ہیں معلق علی المحال کر بالفرض کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، لیکن دیکھیے کتنی پرفیکٹ یہ کائنات بنی ہے۔ ہم اپنے وجود دیکھ لیجئے، زمین کو، ارض کو دیکھ لیجئے کہ سورج سے ایک اچھے فاصلے پر ہے، اور اس سولر سسٹم کو دیکھ لیجئے، اس نظام شمسی کو دیکھ لیجئے کہ اس میں جو باقی سیارے وہ زمین کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے سیارے ہیں جس کے متعلق میں سن رہا تھا ایک سائنس کی تحقیق کو، کہ وہ جو ہماری طرف آتش وشا ایسٹرائڈ آتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے تاکہ وہ ہماری زمین سے نہ ٹکرائے۔ تو اللہ نے کتنا منظم یہ بنایا۔ اب دیکھیے بالفرض اگر خود بخود بنی ہے تو اتنا منظم کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا یہ محال چیز ہے کہ اتنی منظم کائنات بنی ہے اور اس کے لیے بنی ہے، خود بخود بن گئی ہے۔ تو یہ بالکل ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود ہونا ثابت۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا۔ اب یاد رہے کہ دنیا میں آپ کو بتا چکا ہوں دارالعمل ہے۔ اب اگر اللہ یہاں نظر آ رہا تھا تو سب ایمان لے آتے، تو پھر تو یہ چیز ابس ہو رہتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا، اور یاد ہے اللہ تعالیٰ ابس سے، فضول کاموں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک پچھلی دفعہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے وہ میں نے دی تھی کہ ہم اپنی دنیا کی، اس دنیا میں اپنی آنکھ سے ایٹمز کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہاں پہ وہ اس زمرے میں بات تھی۔ البتہ میں نے لفظ ہی نہیں کہا تھا دنیا اپنی، اس دنیا میں اپنی آنکھ سے۔ تو ایک بھائی کا اس پہ اعتراض آیا تھا ہماری ویڈیو کے نیچے، ان نے استفہاماً اعتراض کیا تھا، یعنی سوال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ خود مسلمان ہے، کہ اب دیکھیے ایٹم کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہی میں بات کہتا ہوں، اس کے اولاً دنیا دارالعمل ہے، اللہ نظر آتا تو یہ کس طرح ہوتا؟ ثانیاً یہ جو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے لیکن اس نے اپنے وجود کی نشانیاں چھوڑی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کا بننا، زمین و آسمان ہے، دن رات کا بدلتے آنا، یہ ساری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ بھی ایک ثالثاً ایک یہ بھی بات یاد رکھیے، کوئی سائنسی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ آپ کو ہمیں پیش کیجئے سائنسی قاعدہ کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی سائنسی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس جو ہے ابھی تک اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی بلیک ہول کی واضح تصویر ابھی تک نہیں ہے، ایک بلر تصویر آئی ہے، وہ بھی بڑی محنت مشقت سے آئی ہے۔ تو دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو سائنس نہیں دیکھ سکتی ہے اپنی جدید ٹیلیسکوپ سے بھی، اور یہ سائنسی اصول بھی نہیں ہے، اصول میں سے اصل بھی نہیں ہے کہ جو چیز ہو اس کو دیکھا جانا ضروری ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا جواب ہے۔ جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے بتایا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قدرت میں ہے، تو اللہ پاک اپنی ذات کو انسانوں کے سامنے واضح کیوں نہیں کرتا؟ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ وہی بات، اگر واضح، اگر بالکل ذات دکھا دیتا یا ڈائریکٹ کلام کرتا
दुनिया दारुल अमल नहीं थी। हाँ अलबत्ता उसने उसके होने पर कई निशानियां हैं। सबसे पहले तो अकल हमारी बात, अब देखिए अकल इसका तकाजा करती है, अकल इसकी मुक्तजी है कि इस कायनात के इसका जो बनी है बिग बैंग के जरिए, जिसके जरिए भी बनी है, कुछ है पीछे सोर्स, कुछ इल्लत है जिसकी वजह से बनी। और मुल्हिदीन यहां पर आके खामोश है, मैंने उनके सुने एतराजात, यहां पर आके वो भी खामोश है, वो फिर चुप हो जाते हैं, वो नहीं बता सकते। तो वो जो इल्लत है जिसने कायनात बनाई है वो अमर रब्बी है, और अमर रब्बी अल्लाह ताला का अमर है, तो इस वजह से कायनात बनी है। तो ये बिल्कुल अकल है। बाकी आप ये देख सकते हैं कायनात हर चीज अल्लाह की जात पर दलालत करती है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल हमारे ज़हन में आता है कि अल्लाह जब कादिर मुतलक है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है, तो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता? उसने एक ख़ास बंदा मैसेंजर बनाकर हमारी तरफ क्यों भेजा? और जब एक मैसेज है वो यूनिवर्सल है हर इंसान के लिए, तो उसने वो हर इंसान को अलग अलग क्यों नहीं उसको बता दिया? एक बंदे के ज़िम्मे सारी जिम्मेदारी क्यों लगा दी? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। असल ये मुल्हिदीन करते, और ये असल में जो एतराज है ये कुफार का है, कुरान में मज़कूर है, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाह, जिनके पास इल्म नहीं, यानी कुफार ने, मुशरिकीन ने कहा अल्लाह हमसे डायरेक्ट कलाम क्यों नहीं करता। अच्छा अब करता क्यों नहीं? खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, दुनिया दारुल अमल है, डायरेक्ट बात करे तो वो चीज रहती है। दूसरा, अच्छा अब ये एतराज हो सकता है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी मखलूक है इंसानों में, उसमें से एक दो अशखास को एक जमाने में या चंद अशखास को ये सिर्फ अपनी वही फरमाई, सबको क्यों नहीं फरमाई? तो वही बात, सबको फरमाता सारे हिदायत याफ्ता होते। अच्छा अब इस अकली मैथोलॉजिकल आपको बताता हूँ, जिस तरह एक इम्तिहान गाह होता है, स्कूल होता है, तो उसमें टीचर्स रखे जाते हैं ना, बिल्कुल, ये तो नहीं ना कि हर बच्चा अपना खुद टीचर होता है। तो अंबिया और रसूल की जो मिसाल है, बिला तमसील मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, वो टीचर्स की तरह है, वो अल्लाह ताला का पैगाम हमें बताते हैं, अमल करना हमारा काम है। तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को चुना। और इसका जो इख्तिताम और रसूलुल्लाह की जात पर अब कोई रसूल नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऐसी तालीमात दे दी है कि जो क़यामत तक काफी है। अच्छा जनाब, एक और सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल इस दौर में उठ रहा है सवाल, वो ये कि इस्लाम हर चीज़ में बराबरी का कायल है, तो औरत को इस्लाम में मर्द के बराबर क्यों नहीं हिस्सा दिया गया? औरत को मिरास में आधा उसका हिस्सा है, और औरत को हिजाब का हुक्म है, मर्द के लिए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे इस्लाम मुसावात का नहीं बल्कि अदल का हुक्म देता है। ये मैं आपको समझाता हूँ, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, अदल तक़वा के करीब है। अब याद रहे मुसावात और अदल में फर्क है। अदल ये होता है कि जिसका जो मकाम है उसको वो चीज दी जाए, मुसावात सबको बराबर रखा जाए। मिसाल के तौर पर अब एक कंपनी है, उसमें सीईओ है, सीईओ है, और इसी तरह एम्प्लॉइज हैं, तो अब क्या, अब मुसावात ये भी होती है ना कि सबको बराबर तनख्वाह दी जाए। तो आप कहेंगे तो बेवकूफी है, अदल किया जाएगा, सीईओ को उसकी पोजीशन के मुताबिक तनख्वाह होगी, बाकियों को उनकी पोजीशन के मुताबिक और वर्क के मुताबिक तनख्वाह। इस्लाम अदल का हुक्म। दूसरी बात कि औरतों के वो मकामात नहीं, याद रहे इस्लाम में औरतों के वो मकामात है जो मर्दों के नहीं है, और मर्दों के वो जो औरतों के नहीं। ये देखिए दो ये अलग अलग ये जिन्स है। अब आपने कहा कि मिरास में मर्द को डबल हिस्सा, औरत को आधा है। इसकी वजह यह कि याद रहे कि मर्द जो है उस पर सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिनका वो वली होता है, यानी उसके माँ बाप हो गए, इसी तरह उसके बीवी बच्चे हो गए और दीगर हो गए, तो उन सब की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको डबल हिस्सा दिया ताकि वो उन पे खर्च कर सके। अकेली जात तो नहीं है ना, औरत को इसलिए अकेला दिया कि वो अगर शादीशुदा हो तो उस पे खर्च करना जरूरी भी नहीं अपने बच्चों पर जो उसकी मिरास में हिस्सा आया है, ना भी करे तो ठीक है क्योंकि मर्द है ना करने वाला, और अगर शादीशुदा नहीं है तो वो तो फिर डबल मजे उसके खुद खाएगी। इसी तरह आपने एक और कहा कि हिजाब का हुक्म औरतों को मर्द को नहीं है। देखिए औरत वो चीज है जिस जो पुरकशिश है। अब याद रहे मर्द को भी हुक्म है कि अपनी निगाहें नीचे रखें। सूरह नूर में कि अल्लाह ताला फरमाता है नबी मोमिनों से फरमाइए वो अपनी नजरों को झुकाए रखें, इसी तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये मर्दों को भी हुक्म है। औरतों को हिजाब का भी हुक्म साथ है कि आप हिजाब भी करें, क्योंकि औरत पुरकशिश होती है। और देखिए जो चीज कीमती होती है वो संभाल के रखी जाती है, नुमाया नहीं की जाती। जैसे गोल्ड है, अब क्या कोई गोल्ड जो है वो साथ बिल्कुल एक वाजे शापर में लेके गली में चलेगा? नहीं। कितना भी सेफ मुल्क हो, उसको ये होगा खदशा कि कोई चोरी हो सकती है, बाद में मुझे किसी तरह भी मारा जा सकता है। इसी तरह औरत जो है गोल्ड है, इसी तरह हिफाजत की चीज है। अच्छा जनाब, ये जन्नत जहन्नम आखिरत में उठना, दोबारा ज़मीन से दोबारा निकलना, एक चीज़ जब गल सड़ गई उसने दोबारा निकलना, ये सारी अफसानवी कहानियाँ लगती हैं। इस बारे में क्या कहते हैं इस्लाम?
بالکل मुल्हिदीन का ये एतराज है कि जन्नत जहन्नम तो ये अच्छा ये एतराज उस वक्त करते हैं जब अल्लाह ताला के ना अदम वजूद का वो इस बात करने से आजिज हो जाते हैं, फिर वो उनको कोई राह नहीं मिलती है तो वो इस तरफ आते हैं। अब देखिए कि यहूद को पता था कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, बल्कि कुरान में है पारा नंबर 2 में बिल्कुल पहले रकू में है कि यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते थे अहले किताब कि जैसे कि अपने बेटों को जानते। इस पर यहूद के आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला जो बाद में मुसलमान हो गए तो उनकी मोहर भी सबत है कि बिल्कुल ये बात हक है। तो कुछ लोग वो होते हैं कि जिनको पता होता है हक क्या है, लेकिन वो उनकी एक अना होती है, अनापरस्ती में आके। इसी तरह मुल्हिदीन के अक्सर लोगों को पता होता है जो अगर बैठ जाते हैं जवाबात सुनते हैं कि हम बातिल पे हैं, लेकिन वो उनकी एक अनापरस्ती होती है या उनका ज़हन नहीं मान रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब खुदा को मानना पड़ेगा तो उसके तमाम हुक्म मानने पड़ेंगे, जब मानना पड़ेगा बॉस है तो उसके तमाम ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अब इस जन्नत और जहन्नम का जहां ताल्लुक है, मैंने पहले साबित कर दिया कि अल्लाह ताला का वजूद है। अब जब ये साबित हो गया तो इससे और ये भी साबित कर दुनिया दारुल अमल है। फिर अब याद रहे जब भी इम्तिहान होता है दारुल, जिस जगह पे आप इम्तिहान देते हो उसके बाद आपको सजा मिलनी है, ये जजा मिलनी है, ठीक है। तो अब जो जन्नत है ये हमारे अकायद की किताब में अल अकीदतुल कैरवानिया, ये 4वीं सदी के एक बुजुर्ग हैं इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अबी ज़ैद कैरवानी, ये फरमाते हैं इसमें कि जन्नत जो है ये अल्लाह ताला के नेक बंदों के लिए ये इनाम है और जहन्नम अल्लाह ताला के दुश्मनों के लिए। मैं इधर आपको काटना चाहूंगा माजरत, क्या जन्नत और जहन्नम इस टाइम वजूद में है या नहीं? जी मैं अच्छा, वो फरमाते कि जहन्नम है वो अल्लाह ताला के दुश्मनों के लिए सजा है। तो इसे अकल भी कहती है, जब एक दारुल अमल है तो उसके बाद कोई सजा जजा तो मिले ना, यहाँ पे ऐसी खच्चल होना, ये तो फिर बिल्कुल एक गैर माकूल बात है। अच्छा, अब ये जन्नत और जहन्नम भी वजूद में है या नहीं, ये तो याद रहे कि बिल्कुल है, जन्नत जहन्नम है, अभी भी है। कुरान में इसके लिए पास्ट का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जन्नत के लिए उइद्दत लिल मुत्तकीन माजी का, कि ये तैयार कर दी गई है मुत्तकीन के लिए, जहन्नम के लिए उइद्दत लिल काफिरीन पास्ट टेंस है, पास्ट से पास्ट ही मुराद होता है जब तक कोई खिलाफ करीना बात ना हो। तो इससे यहाँ पे कोई करीना नहीं है कि इससे मुदारे के माने में इस्तेमाल किया जाए। तो इस पर उम्मत का इजमा भी है। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग आइमा अरबा में से, वो उसूल सुन्ना आपकी किताब है, उसमें फरमाते हैं जन्नत और जहन्नम के इस बात का भी इनकार करे कि वो पैदा नहीं बाद में हो जाएंगी, वो भी मेरे फरमाते हैं हमारे नजदीक यानी आले हक के नजदीक वो शख्स कुरान की तकसीब करने वाला यानी काफिर है। तो ये बिल्कुल जन्नत जहन्नम भी मौजूद है। इसका वजूद अगर है तो ये किस जगह पे हमें तो नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल ये वही बात है कि अल्लाह ताला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये देखिए ये है ना, तो अगर नजर आ जाएंगे, हमें पहले से पता है कि ये चीज बनी है, जब ये हमें बिल्कुल वाज़े नजर आ जाएगी तो फिर पता चलेगा किसी ने बनाई है, अल्लाह ने, तो फिर बिल्कुल वही जैसे अल्लाह देख लिया जन्नत देख ली बराबर ही एक चीज हो जाएगी। तो ये दारुल अमल है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बता दिया गया है अकल से। अब अल्लाह फरमाता है अकल करो, अकल से बिल्कुल बता दिया, समझ भी आती है कि जब दुनिया अल्लाह है, दुनिया दारुल अमल है, फिर जज़ा सज़ा तो होनी है, जज़ा को कहते हैं जन्नत, सज़ा को कहते हैं जहन्नम। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे तरीके से कुरानी दलाइल के ज़रिए और लॉजिकल तरीके से आपने हमें सवालों के एतराज़ात को हमारे दूर किया। हाफिज़ सुभान साहब ने हमारे सवालों के जवाब दिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मज़ीद इस सेशन को आगे बढ़ाएं और इसको एक और एपिसोड इसकी लेकर आएँ, तो आप अगर इल्हाद के कोई भी आपके ज़हन में किसी किस्म का इल्हाद के एथीज़म के मुतालिक कोई सवाल हैं तो हमें वो अपने सवाल भेजें, कमेंट करें हमारे जो ऑफिशियल TRR के पेजेस हैं उन पर। तो अगर वो आपके सवालात ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में हुए तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में एक और एपिसोड लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।